Let's have a discussion on this question based on the factorial concept in the series. What the question is talking about, let's read. If n factorial is greater than 2, 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus 19 into 19 factorial, ये आपको दिया है. So where n is a natural number, so then what is the possible smallest value of n? बहुत ही अच्छा question है. I will suggest you to try this question right now after pausing this video, and then you can try. Okay, after trying you can check what is your final solution. If it is same, then yes, surely hit the like button and then share this link, okay, with all your friends, and also write down your answer in the comment box. चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा. तो since I can see my question is talking about the thing, जो बोल रहा है पहले इसी की बात करते हैं, सीक्वेंस की बात करते हैं. It is given to us 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial 3 into 3 factorial. I think यही है. Yes, it is same. Similarly and so on, it is talking about कहाँ तक 19 into 19 factorial. अब एक बात तो समझ में आ रही है क्वेश्चन को देख के कि here we need to do some changes in this format only. So what I can do, I can write down this 1 as in 2 minus 1. ठीक है, ये 1 factorial रहा. This 2 can be written as in 3 minus 1 multiply with the 2 factorial. This 3 can be written as in 4 minus 1 into 3 factorial. And so on, जब हम आगे तक जाएंगे तो this 19 can be written as in 20 minus 1 and multiply with the 19 factorial. ठीक है, और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. 2 into 1 factorial is a 2 factorial, है ना, मतलब 2 into 1 is 2 only. Minus 1 into 1 factorial, मैम 1 factorial. मतलब the thing which is right now present in the product form. The beauty of this series is क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया है, आप उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करोगे यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. और उसके बाद वी नो वेरी वेल वेन एवर इन द सीक्वेंस और सीरीज वी आर हैविंग ए सीरीज इन द प्रोडक्ट फॉर्म, अगर हम उसको सम और डिफरेंस में कर देते हैं तो सम अपोजिट साइन वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है और आंसर बहुत इजीली आ जाएगा. सो द सेम अप्रोच आई एम गोइंग टू फॉलो हियर. सो इन दिस केस 3 into 2 फैक्टोरियल, मेरी बात समझना बेटा बहुत आसानी से. when I'm going with 3 into 2 factorial, 3 मतलब 3, 2 factorial मतलब 2 which is 6. 6 मतलब क्या हुआ 3 factorial. तो बेसिकली अगर मैं इस 2 के अंदर 2 factorial में 3 को वापस अंदर लेके जाऊं तो इट बिकम्स 3 factorial, एक नंबर बड़ा बन जाएगा. तो इट विल बी 3 factorial और माइनस 2 factorial. सिमिलरली 4 into 3 factorial will be 4 factorial माइनस 3 factorial. प्लस अगर नेक्स्ट आप जाओगे तो यहाँ कितना आएगा 5 factorial माइनस 4 factorial. and so on 20 into 19 factorial will be nothing but 20 factorial और माइनस 19 factorial यहाँ तक आ गया. बात समझ में आई. अगर इसे एक टर्म कम लिखना है तो यहाँ पे क्या आएगा, इट शुड बी 18 into 18 factorial ना. तो आई कैन राइट डाउन हियर इट शुड बी, एक टर्म और अगर यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, that is 19 minus 1 into 18 factorial, which you can write down here as an 19 factorial minus 18 factorial. सिर्फ आपको बताने के लिए कि टर्म्स कैंसिल हो गया, आई एम राइटिंग हियर. नाउ यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू कैन सी प्लस 19 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल गॉन. इससे पहले आएगा माइनस 18 और प्लस 18 गॉन. 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट. व्हाट वी विल हैव, we will have the last term and this minus 1 factorial. So we will leave here, we will have at the last 20 factorial minus 1 factorial. मतलब ये जो पूरी की पूरी टर्म थी which is starting from 1 into 1 factorial and going up to plus 19 into 19 factorial, the result is 20 factorial minus 1. इसका मतलब क्या मैं यहाँ conclude करूँ कि this result 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial and so on when we are going up to 19 into 19 factorial, this term is basically, इस टर्म का रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है क्या है, which is 20 factorial minus 1. ठीक है, अब 20 factorial minus 1 मतलब इस पूरी की पूरी जो वैल्यू है उसका रिजल्ट 20 factorial से कम है, because it is mentioned ना 20 factorial minus 1. So surely it is less than 220 factorial, correct? तो n की वैल्यू मेरे पास, अब now here it is talking about this n ना, तो I can write down this complete result can be 20 factorial. बड़ी वैल्यू होगी इस पूरी की पूरी सीरीज से 1 into 1 factorial, 2 into 2 factorial, 3 into 3 factorial, कहाँ तक जा रहे हैं 19 into 19 factorial तक जा रहे हैं. नाउ श्योरली द क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड कि मैम 20 ही जरूरी है. नहीं बेटा, यहाँ 21 भी आ सकता है, यहाँ 22 भी आ सकता है. बट सिंस माय क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, जो यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज जब आपने इसको सॉल्व किया यू आर गेटिंग द रिजल्ट 20 फैक्टोरियल माइनस 1 ऑफ दिस वन. इसका मतलब इस पूरी सीरीज की वैल्यू 20 फैक्टोरियल से तो कम है एग्जैक्टली.
हाँ, उसकी वैल्यू 21 फैक्टोरियल से भी कम है, 22 फैक्टोरियल से भी कम है, बट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज जो पॉसिबल है यहाँ पे वो होगी 20 फैक्टोरियल, मतलब n की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है वो क्या होगी 20। सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n हियर विल बी 20, जो कि यहाँ आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर यू गाइज आर हैविंग क्लियरिटी इन दिस क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आई है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सीक्वेंस के साथ साथ फैक्टोरियल का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। Thank you.